Assalamu alaikum class. Today we will study about the movement of momentum of a rigid body, while in our previous lecture we discussed the kinematics of the rigid body motion by considering a rigid body of this form and considered two coordinate system with the uppercase x, y, z fixed coordinate system, while the second one with the lower alphabet x, y, z the moving coordinate system. In this lecture we consider that a body is rotating with angular velocity and it is also moving, also translating. We derive the general kinematic equations, and these kinematic equations are given equation number 4, 5 and 6, and then perform a problem in the form of example 1. In today's lecture, the movement of momentum of a rigid body will be considered. For the analysis of the motion of a rigid body, equation of motion at center of mass C is given in equation 1, which is actually the Newton's second law of motion. F is equal to ma, where a is equal to 2 times derivative of the position vector of center of mass C, which is this RC is given by this. We will discuss it in detail later on. This equation describes only the translation of the mass center. In order to describe the rotational effects of the rigid body also, we will look forward this figure given in figure 1. These can be derived by applying the equation of moment of momentum, which is m is equal to h dot, and h dot what is h is equal to m into rc, which will be given in at last as a remark I included. H is equal to r into mv, which is the moment of momentum. The moment of momentum we will first derive an expression for the moment of momentum hc of a rigid body about center of mass. इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम ये रिजिड बॉडी लेंगे इन दिस फॉर्म, और c जो है इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास पे हमने जो सेकंड मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको इसके ऊपर रखा, यानी कि सेकंड मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है. सो अब इसमें जो O है ये ओरिजिन है फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और जिसको हमने अपर केस में एक्स वाई जी का है, और C जो है वो ओरिजिन है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी का, जिसको हमने लोअर केस में कहा है, और C जो है वो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी है. The RC is the position vector. अब इस फिगर में RC जो है वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, और RC जो लोअर केस में R है ये पोजीशन वेक्टर हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया है विद इन दिस रिजिड बॉडी. यूँ समझ लें कि ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है ये एक डिफरेंशियल वॉल्यूम है इस विद इन रिजिड बॉडी जो है. सो RC is the position vector of the center of mass with respect to O. R rho is the density of the body. dV is a typical volume element located by the radius vector RC drawn from the center of mass. Omega is the angular velocity of the body which this rigid body is rotating, and this rotation is in the anti-clockwise direction. The moment of momentum hc for the volume element dv about center of mass c can be written as we are about to calculate the moment of momentum for this differential
differential volume, therefore the movement of momentum in differential form is given in equation number 3. अब इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइडों पे तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी. Since rigid body rotating with angular velocity ओमेगा, जैसा कि फिगर में 1 में देखा जा सकता है. अब v जो है वो इक्वल है आर सी प्लस ओमेगा इंटू आर सी. एक्चुअली ये आइडिया जो है जो हमारा पिछला लेक्चर था कि पिछले लेक्चर में हमने यहाँ से ये अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर किया था पिछले लेक्चर में जो कि इक्वल था आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस रो बी के, इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब ये आर डॉट पोजीशन वेक्टर का ये वेलोसिटी है, इसको आप वी बी इज इक्वल टू वी ए भी लिख सकते हैं और ओमेगा इंटू वी जो है वो रो बी या आ सकती है, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव है. तो इस इक्वेशन को हमने यूटिलाइज किया है यहाँ पे. तो यूजिंग 5 into 4 after simplifying we get equation number 6 in the first term. अब ये जो फर्स्ट टर्म है इक्वेशन नंबर 6 की राइट हैंड साइड में, इसमें आर सी कांस्टेंट है. आर सी कांस्टेंट है तो आर सी जो है वो इसमें से बाहर आ जाएगा. अब चूंकि आर सी इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मतलब कि आर सी जो है वो यहाँ से ये जो आर सी वॉल्यूम एलिमेंट का जो डिस्टेंस है इस विद रिस्पेक्ट टू इससे पोजीशन है इसकी, ये चूँकि यहाँ से मेजर किया गया है, इसकी जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ ऑफ द फिक्स कोऑर्डिनेट जो है उस पर कोई मतलब के चेंज नहीं है. तो लिहाजा इसमें जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 0 होगा. तो इस चीज़ को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे. यहाँ पे एज आर सी इज मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी देन चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कोऑर्डिनेट जो है विद टाइम कोई चेंज नहीं आएगा, वो 0 होगा. जब इसको आप इसमें पुट करेंगे तो ये साइड जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी. अब इसको आप इन इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी. मतलब इसका जो ये वाला फर्स्ट पार्ट है ये 0 के इक्वल हो जाएगा. तो which is the moment of momentum about the center of mass C. Now ये हमने निकाला है about center of mass C, मतलब आप सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इस रिजिड बॉडी के सेंटर पे रखते हैं. तो देन जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम होगा वो हम इक्वेशन नंबर जो 9 में इस तरह कैलकुलेट करेंगे. नाउ वी लुक फॉरवर्ड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ मोमेंटम एट एनी पॉइंट विद इन द रिजिड बॉडी. जैसा कि यहाँ पे शक्ल में देखा जा सकता है, पहले तो यहाँ पे हमने अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाला था. अब सेंटर ऑफ मास की बजाय मैंने क्या किया है, मैंने जो है वो इस रिजिड बॉडी में कहीं कोई सा भी पॉइंट है, वो पॉइंट जो है वो ए है. अब इसको सेकंड कोऑर्डिनेट जो मूविंग कोऑर्डिनेट है उसका ओरिजिन जो है वो मैंने इस पॉइंट ए के ऊपर रखा है और ये पॉइंट जो है वो अबाउट दिस पॉइंट ए जो है वो विद एंगुलर वेलोसिटी इन एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहा है. अब बाकी चीज़ें उसी तरह ही हैं. अब सेंटर ऑफ मास सी का विद रिस्पेक्ट टू ए जो पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर आर ए सी होगा. अब ये डिफरेंशियल वॉल्यूम जो है इसका विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है वो पोजीशन जो है वेक्टर जो लोकेट करने है वो आर सी होगा. और इसका विद रिस्पेक्ट टू जो पॉइंट ए है जिसको हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम पॉइंट ए निकालेंगे उसको हमने आर ए से रिप्रेजेंट किया है. अब इस इक्वेशन को जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है अबाउट एनी पॉइंट ए जो है वो इस फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन नंबर 10 में. इसको इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 11 आ जाएगी. सिंस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जैसे फिगर 2 में देखा जा सकता है. तो इसमें वही तो लेक्चर नंबर 3 वाला कंसेप्ट ही है, v इज इक्वल टू आर ए डॉट. अब डॉट जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव को शो कर रहा है. इक्वेशन नंबर 12 को जब आप 11 में यूटिलाइज करेंगे तो आपके पास आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वी गेट इक्वेशन नंबर 13. अब फिगर से
ये हमें एक रेक्टेंगल नज़र आती है, ट्रायंगल नज़र आ रही है। तो इसको अगर हम हेड टू टेल रूल यूज़ करें तो आपके पास आर ए जो है वो रिजल्टेंट है। किन का? आर ए जो है ये आर ए रिजल्टेंट है आर ए सी का, और आर सी का, इन दोनों को ऐड करें तो आर ए जो है वो आपके पास रिजल्टेंट आएगा। तो इसको जब मैं 14 को आर ए इस यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, इस जगह पे वैल्यू पुट करूँगा और इस जगह वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 15 आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो मेरी कैलकुलेशंस हैं उसमें हम इक्वेशन नंबर 15 की जो राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं उन टर्म्स को बारी बारी जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। अब राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास, उस टर्म को सिंप्लीफाई मैं इस तरह करता हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में दिखाया गया है। सिंपल जो कि यहाँ पे प्लस है, सिंपल क्रॉस, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में इक्वेशन नंबर 16 आ गई है। अब चूंकि सिंस आर सी इज इक्वल टू 0, ये आर सी इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है? ये आर सी 0 इक्वल टू ये वाला जो है इसलिए लिया है। अब इसमें जो रोटेशन है वो अबाउट एनी पॉइंट ए है, जो हम इफेक्ट का देख रहे हैं वो हम अबाउट मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, अबाउट एनी पॉइंट ए कर रहे हैं। तो लिहाजा इसमें जो इसका इफेक्ट है वो होगा ही नहीं। तो हम इसमें जो आर सी है इस वाली टर्म में राइट हैंड साइड पे ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो जिसकी वजह से सॉरी ये वाली टर्म सेकंड टर्म इसमें ये इक्वल टू ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 होगी। अब 17 को जब मैं 16 में पुट करूँगा तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 18 आ जाएगी। अब ये सारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे ये m आ जाएगा मैथ्स के। अब जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 15 के सेकंड टर्म है, इसको सिंप्लीफाई हम जो है वो इस तरह करेंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई किया इक्वेशन नंबर 19 में। तो 19 में ये वाली जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है इक्वेशन नंबर 9 जो है, जो पहले हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, अब मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकाला था अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसमें इक्वेशन नंबर 9 के इक्वल है। तो उसको जब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे तो इसकी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा आर ए सी इंटू मेगा इंटू आर ए सी एम, और इस सारे की वैल्यू जो है वह सी के इक्वल इक्वेशन नंबर 20 आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 20 को और इक्वेशन नंबर 18 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 15 में। तो 15 में जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करना है, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ से आर ए सी भी कॉमन आ जाएगा। तो आर ए सी यहाँ से और यहाँ से ये और ये, चूँकि ये दोनों टर्म में जो है वो प्लस का सिंबल है तो ये और ये यहाँ से दोनों कॉमन आ गए। यहाँ पे आर ए रह गया और यहाँ पे मेगा इंटू आर सी आ गया। अब ये वाली टर्म जो है ये इक्वल है वी सी की, जो कि इसके इक्वल है। अब इसकी वैल्यू विद इन ब्रैकेट इसकी जगह वी सी लिख दिया, जो कि रिप्रेजेंट करेगा जनरल ट्रांसफॉर्म थ्योरम फॉर द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। यानी कि अगर आपके पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास है तो आप किसी भी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो है वो इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो कुछ रिमार्क हैं कि नोट ए इन फिगर 2 जो है वो कोई भी पॉइंट है जो कि स्पेस में फिक्स हो सकता है, वो फिक्स भी पॉइंट हो सकता है और या मूविंग विद बॉडी भी हो सकता है। अब मोमेंट ऑफ मोमेंटम अगर फिक्स पॉइंट हम करेंगे तो उसका जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो है वो ये वाला आ जाएगा, एच नॉट इज इक्वल टू। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, तो इसमें जो मसला है वो डिस्कस कर लें। आप मेरी तरफ से ये नहीं है कि आप जो है वो क्लास का टाइम जो है वो 1 बजे तक है, तो आप लेक्चर के बाद भी जब भी चाहें तो वो ये डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह।